ऐसा क्या जवाब दे दिया राहुल गांधी ने, मुंह तोड़ जवाब दिया है जो बीजेपी को भाई बुरा लग गया है। तो आइए देखते हैं वीडियो। hand. You stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। अच्छा, Now with all respect, sir. Such a बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, प्लीज प्लीज, ओके प्लीज, नो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट प्लीज, माननीय प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर सर, स्पीकर सर, अगर सर अगर आप हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। ओ भाई साहब, स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है, स्पीकर को आप, स्पीकर इज द लास्ट वर्ड, स्पीकर is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Yes. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. Yes, yes. Now, I gave a speech, Speaker, sir, and it was interrupted throughout. Yes. Now, this time is going to be taken away from my colleagues. And I think that is unfair. Finally, I'd like to say that the principles that allowed us to fight are in our traditions. Truth, courage, non-violence. And they're in all our religions. And what you have come to represent today is untruth, a complete lack of courage, and violence. And my recommendation to you, if you take it, this country has a government and you are the government. And you are, whether we like it or not, you are the government of India. Elected by the people. And I agree to that. But I would say to you
that as individual members, as the cabinet, you do not spread fear in this country. That you do not spread hatred in this country. That you listen to the farmers of this country, you listen to the students of this country. When the opposition says to you, let's have a debate for one day, have it. It's not going to harm anybody. They're going to love you for it. The students of India are going to say, we love the government because they allowed us our voice, they let us speak for one day. So, do not spread hatred. Do not spread violence. Do not be fearful. Even the BJP members here, even the cabinet members, do not be fearful. You have a constitutional position. You are individuals and then you have a constitutional position. Rajnath Singh ji is an individual and he's the Defense Minister of India. And that is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here, we are sincerely here to make your work easier as long as you follow the basic principles that we have stated. And these principles are Shivji's principles. They are the principles of Shivji. Har Har Mahadev, you can say, to make the government. This is basically what I have explained here today is the concept of Indian leadership in all religions. Respect, affection, ahimsa, and always standing up for the truth. And I'm more than happy, all of us are more than happy to discuss anything you want without being nasty, without being aggressive, anything you want, we are ready to discuss. So please let us work together to take this country forward. You are the government. We have to accept that. You got 240 seats. So I congratulate you on that. At least accept it. Accept to kar lijiye. They're not happy. They're not happy. Not happy. They're not happy. Okay, you're not happy. So I would say we want to both work for this country. Work with the spirit of bravery. Work without violence. Work without hatred. Thank you. मान्यवर में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश की पुस्तिका का 10वें संस्करण का 115वां आपके सामने उल्लेखित करना चाहता हूं। इसके क से घ तक पढ़ेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे। महुआ मित्रा, श्रीमती महुआ मोइत्रा। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गया है खत्म। तो एंड में लास्ट में आके भाई
अमित शाह साहब को बुरा लग ही जाता है और राहुल गांधी के जो इल्जाम थे सारे खारिज कर देते हैं, बंद बोलते हैं कि इसका प्रमाण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कुछ मेरे समझ में आ रहा था राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, और कुछ मेरे ऊपर से जा रहा था क्योंकि मुझसे इंग्लिश नहीं आती भाई, उतना नहीं पढ़ा हुआ हूं मैं। अगर आपको समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, तो थोड़ा थोड़ा मेरे पल्ले पड़ रहा था और आधे से ज्यादा मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो गाइस एक बार आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये राहुल गांधी ने सब गलत बोला है, जो उनका अमित शाह साहब को इतना बुरा लग गया खड़े होकर, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई इसका कोई जो ये बोल रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, और ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, ये है वो है। इतना बड़ा नेता पार्लियामेंट में आके ऐसे कैसे बोल सकता है? ये देखिए ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आए कुछ भी बोल दिया उन्होंने, कुछ तो ऐसा हुआ है जो बीजेपी के उन्हें लग गया कि भाई ये तो ज्योति खोल रहा है। तो गाइस ये मेरा नया चैनल है और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।